اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا خبیر و اخبرنی۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہیں 4 برج اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب۔ کیسا رہے گا ان کا 6 مئی تا 15 مئی 2026 ان کے شخصیت، حیثیت، دولت، عزیز رشتہ دار، حادثہ، خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، اولاد، قسمت، پرائز بونڈ، لاٹری، محبت، منگنی، مرض، صحت، افسرانے والا، حکام والا، میاں بیوی کے تعلقات، نکاح، شادی، شراکتی کاروبار، زندگی موت، انشورنس کلیم، مقدمات، بیرون ملک سفر، ماں کی صحت، قانونی الجھنیں، کاروبار، دوست اور دشمن۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ ان کا کیسا رہے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں سنبلہ برج کی طرف۔ سنبلہ برج والوں کی شخصیت، حیثیت گزارا لائق رہے گی، اس لیے وہ اپنے قول فعل، تحریر، تقریر میں احتیاط کریں ورنہ لڑائی جھگڑے آ سکتے ہیں۔ ان کو دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، پیسے ان کے ضائع ہو سکتے ہیں اور کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے دولت کا اعتبار کسی پر نہ کریں تو بہتر ہے۔ حادثے کا خطرہ ہے، عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار بھی لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، اور اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں بھی احتیاط نہ کیا گیا تو مالی جانی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، اس سلسلے کا کوئی بھی کام کیا تو نقصان ہوگا، اور خاندان میں بھی شیطان لوگ سر اٹھائیں گے اور جھگڑے فسادات آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہ ہوگا۔ اولاد کے جملہ مسائل کھڑے ہوں گے، آپ کو پریشانی آ سکتی ہے اولاد کے متعلق، اس لیے اگر بچے اسٹوڈنٹ ان پر نظر رکھیں اور ان کو خود پہنچائیں اور خود لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حاملہ خواتین کو بھی خطرہ رہے گا۔ جوان اولاد کے مسائل، جاب، منگنی، شادی بھی الجھتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ منگنی ٹوٹ سکتی ہے، محبت ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے۔ ہاں، ایک فیوریبل بات ہے کہ اگر بیمار ہے تو شفا ملے گی، افسران بالا، حکام بالا آپ کا ساتھ دیں گے، سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے، تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو سکتے ہیں، شادی آپ کی رک سکتی ہے، شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، شراکتی کاروبار میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں اور آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے اور کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، تو اس میں بہت احتیاط کریں۔ وراثت کی جائیداد کے معاملات آپ کے حق سے باہر جائیں گے۔ بیرون ملک جانے کے راستے بند ہیں، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ کاروبار زیرو پر رہے گا، اسد برج والوں بہت احتیاط کرو۔ یہ دن کسی لحاظ سے آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، سوائے صرف ایک جگہ کے جہاں آپ کی مرض ہے، بیمار ہیں تو شفا ملے گی بس۔ باقی آپ کے کاروبار بھی جو ہے نا آپ کا ڈاؤن رہے گا، اس لیے کاروباری فیصلے کرتے وقت 1000 بار سوچیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمندوں، کاریگروں اور تجربہ کاروں سے مشورہ کریں کاروبار کا۔ دوستو اب آپ کا ساتھ دیں گے، احتیاط کیا، کچھ کھاؤ پکاؤ دوست بھی ساتھ رہیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، کاروباری فوائد جو مال لے رکھا ہے وہ بھی نقصان دے سکتا ہے، خفیہ دشمن پیچھے ہیں، امیگریشن کے مسائل آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، بدریہ سازش آپ بیرون ملک سے وطن واپس آ سکتے ہیں، اخراجات بڑھ سکتے ہیں، سایہ جادو کے اثرات آ سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے برج ہیں 12 میں سے سب سے زیادہ ڈاؤن 6 مئی تا 15 مئی 2026 اسد برج سب سے زیادہ سلو جا رہا ہے۔ چلیے چلتے ہیں برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں، آپ کی شخصیت زبردست رہے گی، آپ بطور لیڈر سامنے آئیں گے، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے۔ 6 مئی تا 15 مئی 2026 سنبلہ برج والوں، آپ کے ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، دولت کی آپ کے پاس آمد ہے، پیسہ مفت دولت بھی مل سکتی ہے۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی ساتھ دیں گے، اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں آپ کو کامیابی ہے۔ خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، احتیاط سے اگر اس میں کام کیا تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ زمین جائیداد آپ خرید سکتے ہیں لیکن احتیاط سے، سواری بھی خرید سکتے ہیں لیکن احتیاط سے۔ آپ کے زچہ بچہ درست رہے گا سنبلہ برج والوں کا۔
हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं, किस्मत बुलंद रहेगी, मोहब्बत साथ देगी, मंगनी हो सकती है, बे औलाद को औलाद हो सकती है, जवान औलाद के जुमला मसाइल हल होते नजर आते हैं। बीमार हो सकते हैं अगर एहतियात ना किया, इसलिए बीमारी के बारे में आप सख्त एहतियात करें। अगर एहतियात ना किया तो बीमार हो सकते हो। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दरमियान रहेंगे। मियाँ अगर नौबत लड़ाई झगड़े तक आए, तलाक तक आए तो अब राजीनामा हो जाएगा। जिनकी शादियाँ ताहाल में उनकी शादियाँ हो जाएंगी, दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। इसके अलावा शराकती कारोबार में भी आपको बड़ा फ़ायदा होता नजर आता है। ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं। विरासत की जायदाद के मामलात एहतियात ना किया तो बिगड़ सकते हैं। केस मुकदमा आपके खिलाफ आ सकते हैं, कोई माली धोखा हो सकता है, इसलिए माली एतबार ना करें, कर्जा ना लें वरना आपके लिए माल साबित होगा। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं, माँ की सेहत दुरुस्त होगी और आपके आला तालीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के भी कामयाब हैं। यूट्यूब से और बोल कर जाकर टीचर ये वगैरह बहुत पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। कारोबार आपका ज़बरदस्त रहेगा, ज़बरदस्त कारोबार। सुमला बुर्ज वालों 6 मई तक 15 मई और नया कारोबार कर सकते हो, जार कारोबार में सरमाया लगा सकते हो। दोस्तों आप साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे और खुफिया दुश्मन आपके पीछे लगे रहेंगे लेकिन उनकी साजिशें नाकाम हो सकती हैं अगर आपने उनका अक्ल से जवाब दिया, वरना वो कामयाब हो जाएंगे। अखराजात बढ़ सकते हैं, अगर अक्ल से काम लोगे तो वो भी जो है ना कंट्रोल हो सकते हैं। माली के केस ओपन थे तो वो बंद हो सकते हैं। इसके अलावा आप पर साया जादू के असरात भी आ सकते हैं। सुमला बुर्ज वालों ये थी प्रेडिक्शन आपकी 6 मई था 15 मई 2026। चलिए चलते हैं मीज़ान बुर्ज की तरफ। मीज़ान बुर्ज वालों आपकी शख्सियत हैसियत दरमियानी रहेगी। अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में 6 मई तक 15 मई एहतियात करने वरना लड़ाई झगड़े आ सकते हैं। ज़राए आमदनी आपकी चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है, ज़राए आमदनी मुतासर हो सकते हैं, दौलत का मुतल्लिक़ नुकसान आ सकता है, आपका हादसा हो सकता है, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई इस दौरान आपके साथ लड़ सकते हैं। लेकिन आप नई सवारी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नया मकान प्लाट खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, कोई बाग लगाना चाहें या कोई लंबी फसल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फैक्ट्री दुकान भट्ठा भाना ये ज़बरदस्त रहेगा। औलाद के मुतल्लिक़ जुमला मसाइल आ सकते हैं, बे औलादी अला आ सकते हैं, हमला ख़वातीन को ख़तरा आ सकता है, किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है और मोहब्बत रूठ सकती है। बीमार हो सकते हो। मीज़ान बुर्ज वालों आप के अफरान बला काम बला से के साथ नाराज़ रहेंगे, इसलिए मीज़ान बुर्ज वालों को चाहिए कि वो बहुत एहतियात करें और अपने फ़रज़ मनसबी पर तवज्जो दें वरना बीमार हो सकते हैं। सर दर्द, सर का दर्द, जिगर गुर्दा मसाना की बीमारी आ सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नौबत तलाक तक जा सकती है। शराकती कारोबार में भी अलहदगी आ सकती है, इसलिए बहुत एहतियात करें। शादी के बारे में या निकाह के बारे में अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करें। ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, हंसती बसती ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आप माली धोखा हो सकता है। इसके अलावा विरासत की जायदाद के मामला आपके खिलाफ जा सकते हैं, कर्ज में डूब सकते हो, कर्ज मार साबित होगा आपके लिए। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बस गुजारे लायक खुले हैं, एहतियात किया तो ठीक वरना नहीं जा सकते, धोखा हो सकता है। यूट्यूब और इससे कमाने वाले बंदे भी जो है ना बहुत परेशान हो सकते हैं कि जो कमा रहे हैं यूट्यूब से वो भी जो है ना मसलन उनका भी जो है ना हाल ज़रा ख़राब हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करें मीज़ान बुर्ज वाले। लेकिन मीज़ान बुर्ज वालों का कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, कारोबार में तरक्की है और जो जारी कारोबार में सरमाया लगाएं, नया कारोबार करें तो बहुत बेहतर है। दोस्तों अहबाब साथ देंगे लेकिन आप उन पर नज़र रखें, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, ख्वाहिश और कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे। जो माजी में आपने माल ख़रीद रखा होगा ताकि हम बेच कर मुनाफा कमाएँ तो वो स्टोर वाले माल से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे लगे रहेंगे, माजी के केस रिओपन होकर आपके लिए बदनामी का बहस बन सकते हैं। साया जादू के असरात मीज़ान बुर्ज वालों पर आ सकते हैं। तो ये प्रोडिक्शन थी मीज़ान बुर्ज वालों की 6 मई था 15 मई 2026। चलिए चलते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। बुर्ज अकरब वालों आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने नजर आएंगे। लोगों के साथ अगर आपके कोई काम अटके हों तो वो आप कर सकते हैं। दौलत आपके पास आती हुई नजर आती है, मुफ्त दौलत मिल सकती है, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे जिससे आपके काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपकी ज़िद की वजह से लड़ेंगे आपके साथ, आप भी उनके साथ लड़ जाएंगे, इसलिए अपनी ज़िद छोड़ो और मामला फहमी करके आगे चलो क्योंकि ये अब टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ख़ानदान फले फूलेगा, शैतान लोग दब जाएंगे,
फसादात दब जाएंगे। आप नई सवारी खरीद सकते हैं। अगर आपकी सवारी चोरी या तबाह होगी तो अब बाजियाब या सही हो सकती है। ज़मीन जायदाद की खरीद और फरोख्त आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी। अकरब बुर्ज वालों, अगर जच्चा हमला ख़वातीन हैं तो उनको ख़तरा रहेगा। मोहब्बत टूट सकती है, मंगनी रूठ सकती है, किस्मत फूट सकती है। इसलिए अकरब बुर्ज वालों इसमें बहुत एहतियात करें। आपके बीमार हैं तो शफा मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल सकती है और इसके अलावा आप तबादला भी कर सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात लड़ाई झगड़ों में थे तो नौबत तलाक तक थी तो अब राज़ीनामा होगा। शराकती कारोबार में भी फ़ायदा है और कई शराकती कारोबारी मुआहदात तय पा जाएंगे। इसका खबरदार, ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं। अगर आपने एहतियात ना किया तो ज़िंदगी आपकी ज़ाय भी हो सकती है। इंश्योरेंस क्लेम मुकदमात आपके खिलाफ जा सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हो, लेकिन एहतियात किया तो इनसे आप निकल भी सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी और आला तरीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले बंदे कामयाब हैं। कारोबार आपका ज़बरदस्त रहेगा, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे। नया कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया लगा हो, आप अपने कारोबार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हो। इसके अलावा मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अपने जो भी कारोबारी फैसले करने इस दौरान करो, ज़बरदस्त है। दोस्तों अब आप साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। वो माल जो आपने खरीद रखा है, स्टोर कर रखा है मुनाफा के लिए, वो भी मुनाफा देता हुआ नजर आता है। खबरदार, इस आपकी तरक्की से आपके हाथ से जल रहे हैं, दुश्मन भुन रहे हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे बदरिया साजिश। तो उनकी साजिशों का जवाब साजिशों से, अकल से देना, वरना वो आप पर हावी हो सकते हैं कि इस मुकदमात में आपको उलझा सकते हैं। तो इसलिए आप एहतियात करें। माली के केस भी रिओपन हो सकते हैं, खराजात बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन थी 6 मई था 15 मई 2026 2026। तो ये थी असद, सुंबला, मीज़ान और अकरब की। तो अगर कोई चाहता है कि इन पर कोई रिजतें जो मनफी ये नेगेटिविटी है वो ना आए, पॉजिटिविटी ही लगे सामने, तो वो सदका दे। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, इसका सदका दे। और इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि हफ्तावार वज़ाइफ पढ़े तो हफ्ते यागनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 मतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मताल 541 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुम्मे या नूर 256 बार पढ़ने से आप पर ये रिजतें नहीं आएंगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहान, या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल, बेरोज़गार को रोज़गार और बीमार को शफा अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हासिद के हसद से, दुश्मन की दुश्मनी से और गम्माज के गम से बचा दे या अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हर इंसान को उसका प्यार नसीब फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक हिदायत, माफ़ी और तलाफ़ी इस जहान में है और ये जहान आर्जी है। हर दिल की धड़कन धक धक ये मौत का नकारा है। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो इस जहान से मांग लो, अगर किसी का कुछ देना है तो इस जहान में दे दो। आज आपके तौबा के आंसू का एक कतरा कल दोज़ख के दहकते हुए समंदर को बुझा सकता है, लेकिन कल जब आप मर जाएंगे तो आपके आंसुओं का समंदर दोज़ख की एक चिंगारी नहीं बुझा सकेगा। ये दुनिया आर्जी है। ख्याल करना कि 2126 में कौन होगा, हम में से कोई भी नहीं होगा। जो बोल रहा है ये भी, जो सुन रहे हैं वो भी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।